Students, today we'll discuss the topic that is functional groups. Clear? And their names, how can we name them? So functional group, all of you know, it is simply the atom or group of atom which describe or decide the properties of the organic compound. I'll give you the example. Suppose CH3OH. All of you know this OH group is said to be the alcoholic group. So ये जो आपका ग्रुप है alcoholic group, अगर alcoholic group होगा तो this compound will show the properties of alcoholic group, or you can say properties of alcohol. If there is CH3COOH group, अगर ये group of atoms होगा, then we know that this group is said to be carboxylic group. Then this compound will show the properties of carboxylic acid. So functional group is simply the group of atoms, clear, or single atom which describe the or decide the physical and chemical properties of organic compound. I'll define atom or group of atoms which decides, or you can say describe the physical and chemical properties of organic compound. OC stands for organic compounds. Clear? Now students, we'll discuss what are the various functional groups present in the organic chemistry and what are their names. That we have the मेन टॉपिक. और दूसरा मेन टॉपिक इसी में आएगा कि जब हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप का जब नाम लिखेंगे देन व्हाट थिंग्स वी हैव टू कीप इन आवर माइंड. सो यहाँ पर लेट अस स्टार्ट विद द एग्जांपल. फर्स्ट इज अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप. इट इज OH and it is written as all, OL, all. Now second is after alcohol, aldehyde. Aldehyde is CH double bond O. This can also be written as CHO. बेटा हम इसको CHO भी लिख सकते हैं. Now it is written as al. Alcohol के लिए all, aldehyde के लिए al. Now number 3, ketone. C double bond O. This functional group. Clear? और दोनों तरफ कार्बन एटम नेसेसरी है. This is said to be the ketone. This can also be written as CO. ऐसे भी बेटा इसको हम लिख सकते हैं. Got it? So this is said to be the ketone functional group. ठीक है. एल्डिहाइड में CO के एक तरफ हाइड्रोजन है, इसमें दोनों तरफ आपके कार्बन एटम होंगे. So it is written as ONE, ONE, ketone. नंबर 4, एज अ फंक्शनल ग्रुप ध्यान रखिए कीटोन ये आपका है, बट एक कंडीशन ध्यान रखना है. अब इसमें भी एल्डिहाइड में भी CO और इसमें भी एल्डिहाइड में एक तरफ हाइड्रोजन है, इसमें दोनों तरफ आपको कार्बन चाहिए, बी नीड. सो नंबर 4 इज थायो एल्कोहल. थायो वर्ड वी विल यूज फॉर सल्फर. तो एल्कोहल क्या होता है बेटा? इट इज OH. उसमें ऑक्सीजन की जगह अगर आप सल्फर लगाओगे SH, this is said to be thioalcohol and it is written as THIOL, thiol. देखिए अल्कोहल के लिए ऑल पहले से था. थाई वर्ड किसके लिए यूज किया हमने? सल्फर के लिए. वी विल यूज द वर्ड थाई, देयरफॉर इट इज रिटन एज thiol. नाउ नंबर 5, thioketone. सो ऑल ऑफ यू नो कीटोन इज C double bond O. इस ऑक्सीजन की जगह बेटा अगर सल्फर आएगा then it is said to be thioketone. This can also be written as CS. और कीटोन में what we have done, हमने on लिखा था, सल्फर आ गया, therefore we will write thion. This is number 5. Now next, at number 6 we'll have carboxylic acid. C double bond O, single bond OH. Collectively it is written as C double OH. Now its name is oic acid. OICACID. Now next is at number 7, acid chloride.
acid chloride is COCl, oxygen double bond. Collectively it is written as COCl and its name is oil chloride. Now number 8, acid anhydride. Acid anhydride, ध्यान से समझना है. C double bond O, then C double bond O. This can also be written like that, CO, CO. These are the two ways to write this functional group, acid anhydride. Clear? Either it is given like that or it is given like that. It is written as oic anhydride. Clear? Oic anhydride. So this is number 8. Now number 9. Number 9, we are having acid esters or simply esters. Acid esters or simply esters. So it is C double bond O R. R, you know, R is alkyl group, just like CH3, CH2, CH3, CH2, CH2, CH3, methyl, ethyl, propyl, like that. So collectively it is written as COOR. Now how it is given, just see out. COOCH3, COOCH2CH3. बेटा कंबाइन कैसे लिख सकते हैं? COOCH3. This can be written as COOCH2CH3. Clear? So this type of compound जिनमें लास्ट में आपको कार्बोक्सिलिक और इसमें थोड़ा डिफरेंस है. देखिए कार्बोक्सिलिक में OH था, इसमें H की जगह आपको क्या मिला है? अल्काइल ग्रुप. सो दीज आर सेड टू बी द एसिड एस्टर और एस्टर्स. तो इसमें क्या नोट करना है? दे आर नेम्ड एज O8. कार्बोक्सिलिक एसिड ओइक एसिड, एस्टर्स O8. दिस इज नंबर 9. नाउ नंबर 10. At number 10 we are having acid amides, also said to be the amides. So it is C double bond O NH2. Combinedly it will be written as CONH2 and its name is AMIDA, amide, as a functional group. Now at number 11, sulfonic acid. S double bond O double bond OH. Combinedly it is written as SO3H. S पे 3 ऑक्सीजन और H. Now it is written as same sulfonic acid. ये आपको ध्यान रखना है, sulfonic acid. Now number 12, amines. So amines में बेटा B remember, either NH2 is given or NH is given or N is given. These all are the amines. Difference: if NH2 is given, it is a primary amine. NH is given, it is a secondary amine. If only N is given, it is a tertiary amine. And they are named as amines. AMINE. Clear? So amines आपके 3 टाइप के हो गए: प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शरी अमीन. Now number 13. At number 13 we are having cyanides. C triple bond N. Combinedly it is written as CN. And as a functional group it is written as nitrile. As a functional group, nitrile. Now number 14 we have isocyanide. So it is N, 2 double bond, third coordinate bond, NC,
कंबाइंडली NC लिख सकते हैं, एंड इट इज रिटन एज कार्बाइल अमीन। सो बेटा टोटल हमने किए ये आपके फंक्शनल ग्रुप। आपको सबसे पहले इन फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है कि आपके कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और उसका क्या नाम है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू मस्ट नो। क्लियर? नाउ जस्ट सी आउट। Now, I'll give you a compound. We have to identify functional group. Got it? ये मैं आपको कंपाउंड दे रहा हूँ, just see out. CHO. So CHO, all of you know this is aldehyde functional group. Okay. Similarly, if I'll give you double bond O. अब इसको अगर एक्चुअली आप देखोगे तो ये C double bond O. This is कीटोन। सिमिलरली ये मैंने आपको दिया। अब ये नाइट्रोजन आया तो बी क्लियर, मैंने आपको कहा था आइदर देर इज अ नाइट्रो NH2 NH और N, द फंक्शनल ग्रुप इज अमीन। आफ्टर दैट नाउ दिस इज COOCH3, बैक में अल्काइल ग्रुप है। दिस इज एसिड, एस्टर और एस्टर। सो आपको बेटा सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि लर्न करना है, सो दैट यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। देन यू आर एबल टू नो कि हाउ कैन वी राइट डाउन द IUPAC नेम। सो एल्डिहाइड, जैसे एल्डिहाइड को हम क्या लिखते हैं? अल। कीटोन को हम क्या लिखते हैं? ऑन। अमीन को व्हाट वी विल राइट? अमीन। एसिड एस्टर में हम क्या लगाते हैं? OH। तो ये आपको पता करना चाहिए, प्रॉपरली पता होना चाहिए। नाउ द मेन पार्ट ऑफ द लेक्चर, कि जब हम IUPAC नोमेनक्लेचर लिखेंगे तो किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। थिंग्स टू बी रिमेंबर्ड, व्हेन वी राइट IUPAC, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है दैट दीज फंक्शनल ग्रुप्स, they are always written with position except at 1। अगर फर्स्ट पोजीशन पे है तो छोड़ सकते हैं, बट अगर आप लिख दो दैट इज बेटर। अगर आपको सपोज चॉइस दे रखी हो कि पोजीशन और विदाउट पोजीशन, देन पोजीशन इज प्रेफर्ड। यानी हम फर्स्ट पोजीशन पे भी अगर पोजीशन मेंशन करें देन इट इज फार बेटर एज कंपेयर टू दिस। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आपको एक एग्जांपल भी देता हूं, ब्यूटेनोइक एसिड, सेकेंड इज ब्यूटेन 1-ओइक एसिड। अब यहां पर ओइक एसिड आपका फंक्शनल ग्रुप है, उसकी पोजीशन मेंशन नहीं की गई है तो इट मीन्स वो फर्स्ट कार्बन पे है। यहां पे हमने पोजीशन मेंशन कर दी तो ऑलरेडी फर्स्ट पे है। तो अगर आपका टीचर ड्यूरिंग द थ्योरेटिकल एग्जाम देता है तो दोनों करेक्ट है, बट अगर हम बात करें हायर लेवल की या एंट्रेंस लेवल की तो आउट ऑफ दीज टू इट इज़ क्वाइट बेटर। तो मैं तो बेटा ये कहता हूँ कि हमेशा इस पॉइंट को नेग्लेक्ट ही कर दीजिए। कीप इन माइंड कि आपको फंक्शनल ग्रुप को पोजीशन के साथ नोट करना है। क्लियर? आफ्टर दैट पॉइंट नंबर 2, फंक्शनल ग्रुप व्हेन रिपीटेड। अगर आपका फंक्शनल ग्रुप रिपीट होता है 2 times, 3 times, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 so on, then we will use डाई। 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, देन पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका एंड सो ऑन। क्लियर? दिस इज द पॉइंट नंबर 2। नाउ पॉइंट नंबर 3 इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। इफ द कंपाउंड कंटेन्स more than one different functional group, अगर आपके कंपाउंड में एक से ज़्यादा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है, चलिए एग्जांपल भी देते हैं। COOH, CH2, CH2, SO3H। अब ऑल ऑफ यू नो दैट इसमें देयर आर 2 फंक्शनल ग्रुप्स, COOH एंड SO3H। These are different, but according to organic chemistry, आपके कंपाउंड के अंदर डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकते हैं। बट इसमें क्या होगा कि प्रायोरिटी सीरीज में, एक हमारी प्रायोरिटी सीरीज होती है, इसको कंटिन्यू करेंगे अभी,
देन द फंक्शनल ग्रुप इन प्रायोरिटी सीरीज, प्रायोरिटी सीरीज में बेटा जो फंक्शनल ग्रुप, द फंक्शनल ग्रुप इन प्रायोरिटी सीरीज एट द अपर पोजीशन, अपर पोजीशन पे जो होगा विल एक्ट एज फंक्शनल ग्रुप, और यू कैन से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह वो काम करेगा। वाइल जो अदर है, वाइल अदर फंक्शनल ग्रुप इज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट, उसको हम क्या ट्रीट करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रायोरिटी सीरीज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऊपर है ऑन द अपर साइड और कौन सा लोअर। तो बेटा वी मस्ट नो द प्रायोरिटी सीरीज। तो प्रायोरिटी सीरीज को पहले यहाँ नोट करते हैं, जस्ट सी आउट, वन बाय वन लर्न करना है। सबसे अपर पोजीशन पे वी विल हैव अमीन सॉल्ट, देन वी विल हैव, सिंबल नोट कर रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड, बेटा लर्निंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन सल्फोनिक एसिड SO3H, then we are having acid anhydride, then we have acid ester, then we have acid chloride, clear? After acid chloride, acid amide, then we have cyanide, then isocyanide, then aldehyde, then ketone, aldehyde, ketone, then alcohol, then phenol, then thioalcohol, and then in the last amine. फिनॉल मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगर आप बेंजीन रिंग के ऊपर OH अटैच करते हो, दिस इज सेड टू बी द फिनॉल। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमीन सॉल्ट? NH4Cl, these types of compounds are said to be the amine salts, clear? यानी नाइट्रोजन पे 4 हाइड्रोजन एंड देन वॉट एवर बी द नेगेटिव आयन टू कॉम्प्रोमाइज। नॉर्मली ये हमारे स्कूल लेवल में कम एग्जाम्पल्स है अमीन सॉल्ट के। तो अमीन सॉल्ट का मीनिंग थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमीन सॉल्ट। प्रायोरिटी ऑर्डर आपको क्लियर है अच्छी तरह से। सो बेटा यू नो दैट अमीन्स आर NH2 फंक्शनल ग्रुप, ये भी आपका अमीन है, NH भी आपका अमीन है और ये भी आपका अमीन है। अमीन सॉल्ट का मीनिंग क्या होता है बेसिकली? CH3NH2, ध्यान से समझिएगा, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, सो ड्यू टू द लोन पेयर ये जो अमीन्स है सभी पे दे विल एक्ट एज बेस। तो अगर आप एसिड के साथ इनकी रिएक्शन कराओगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने लिया, गॉट इट, क्लियर, ये बेस ये एसिड, तो व्हाट इज फॉर्म्ड? सॉल्ट। सॉल्ट कैसे बनेगा देखिए, HCl में H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये H इससे जुड़ेगा, यू विल गेट CH3NH3Cl, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो ये जो कंपाउंड मैंने बनाया दिस इज नाउ सेड टू बी द अमीन सॉल्ट। अब इसका नेम कैसे करेंगे देखिए, ऑल ऑफ यू नो कि NH4Cl को हम क्या बोलते हैं? दिस इज अमोनियम क्लोराइड। अब इस अमोनियम में ध्यान से देखिए, यहां पर क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप, और ये क्लोराइड, सो इट्स नेम इज मिथाइल। और ये NH4Cl था, NH4Cl में एक H हट के हमने मिथाइल ग्रुप लगाया, सो इट इज मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। सो अमीन सॉल्ट्स में क्लियर होगा आपको अच्छी तरह। अमीन सॉल्ट्स में क्या मिलेगा आपको, मैंने क्लियर कर दिया, यू विल गेट NH3 पॉजिटिव और कोई नेगेटिव आयन A नेगेटिव यहाँ मिलेगा। दीज आर अमीन सॉल्ट्स, क्लियर। नॉर्मली बहुत कम यूज होते हैं, नेग्लिजिबल यूज होते हैं, ठीक है, बट एक वर्ड अभी सर होता क्या है वो आपको क्लियर कर दिया, अमीन सॉल्ट्स, और फिनॉल आपको बता दिया। अब देखते हैं उसी पॉइंट पर वापस आते हैं। सपोज आई विल गिव यू दिस एग्जांपल,
इट इज SO3H। और ये अब इसमें आपको बताना है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। सो यहाँ पे बेटा ये सल्फोनिक एसिड और ये CO कीटोन। अब इन दोनों में प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर देखो कौन है, SO3H। सो इट इज अ फंक्शनल ग्रुप। और ये क्या हो जाएगा आपका, दिस इज नाउ एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट नॉट एज अ फंक्शनल ग्रुप। और एग्जांपल भी ले सकते हैं, विल टेक मोर एग्जांपल। दिस इज द बेंजीन रिंग, ये हमने बेटा इस पे NH2 लगाया, ये COOH। अब इन दोनों में से दीज आर टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। प्रायोरिटी ऑर्डर में COOH ऊपर है, अमीन आपका लास्ट में। सो दिस विल एक्ट एज फंक्शनल ग्रुप। और ये कैसे काम करेगा बेटा, इट विल एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज मिलेंगी वो आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप की मिलेंगी। सेम हेयर, यहाँ पे प्रॉपर्टीज किसकी मिलेंगी आपको, सल्फोनिक एसिड ग्रुप की। तो ध्यान रखना है कि जब आप फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करोगे तो उनको पोजीशन के साथ लिखना है, विद रिपीट अगर होते हैं तो डाई ट्राई टेट्रा यूज करना है। मोर देन वन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अगर आपको मिल जाते हैं तो प्रायोरिटी ऑर्डर आपको लर्न होना चाहिए। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप अपर पोजीशन पे है दैट विल एक्ट एज अ फंक्शनल ग्रुप, और जो सेकंड होगा, ठीक है, वो कैसे काम करेगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट। अब इसमें एक चीज और मैं आपको क्लियर करूंगा, देखिए दिस इज द बेंजीन रिंग। अब ये SO3H, COOH, COOCH3, CHO, COCl, CONH2। अब ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं और इनमें सबसे टॉप प्रायोरिटी पे COOH। तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप। अब ये सारे सब्स्टिट्यूएंट हो गए आपके, ऑल दीज दे विल एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट। So student, this is all about the topic that is a functional group. Clear? That's all.